अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे, और ख़ास तौर से हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड अगर हम सिचुएशन देखें जहां 80 मिलियन ऑटो मोबाइल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें पाकिस्तान का शेयर अभी 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के करीब है। इतना कम क्यों है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है एक यंग इकोनॉमिस्ट, MBA जेंटलमैन को, हु इज़ वर्किंग फॉर वन ऑफ द लीजिंग कंपनीज, यासिर एहसान. He is involved in developing products for his leasing company, and he is very well versed in this industry. Yasir, the reference point of our program, Mashi Masail, is to explore what are the possibilities in Pakistan which is not tapped yet. इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पोटेंशियल मौजूद है मगर अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ. वी नो ऑल द रीजंस फॉर दैट, बट वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू इस्टेब्लिश कि पोटेंशियल है. अगर इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की तो आप खाली शोर मचाने से या बात करने से कुछ नहीं होगा. तो पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द होल वर्ल्ड सिचुएशन. Do you see that Pakistan has the potential to become a major auto producer in the world? Yeah, what I would like to say about this, why not? Actually, if you see it's a 100 billion PKR market in the auto industry, contributing somewhere around 4% to the overall GDP, and contributing to the national exchequer of somewhere around 65 billion, which come down in the later year to somewhere around 30-35 billion. But it's significantly contributing to it, and even the large scale manufacturing sector, it's contributing somewhere around 15%. So this is one of the developing sector of the company. See, out of the total 10 biggest auto manufacturers in the world, we can see that 4 of them are here present in Pakistan, including Suzuki, Toyota. We also have this Honda here. We also have Chevrolet coming, having their own production. We have Honda here doing Chevrolet business. is already producing, or they're about It's not actually, Chevrolet is not producing, but they're trying to come up with a distribution channel out here in Pakistan, and gradually they are going to develop their industry out here. For example, assembling, if you see the history of automobile industry in Pakistan, we can see that things have developed over the period of time. Since, for example, 83 से अगर आप देखें तो Suzuki have introduced FX 800, and then since 89 they moved towards Mehran. And later on, in 1993, they came up with other cars like Murgala and Swift and this Khyber. And from 96 onwards, when the government came up with some reforms in that, we can see a development, other companies coming in like Toyota and Honda later on. And then we can see development gradually. After 2005, it rapidly developed. And these companies also earned significantly, but they also invested. If you see, they made an investment of somewhere around 3.8 billion in the last year, into 2008 and 9, in such a stern and strict economic conditions. That was a very, very bad year for car industry. Yes, I believe. Indeed. After 2008, no doubt. Partly because of the global credit crunch, and then that led to plus inflation. Basically, that inflation. Because. अच्छा, ये बताइए यासिर, अभी 2008 से लेके अब तक जो 2008 में मेजर स्लम्प आया था इंडस्ट्री में, हाउ डिड इट अफेक्ट योर लीजिंग बिजनेस? 2008 में, see, if you see the overall banking sector as well as the leasing sector that were more into financing, see the crunch, what happened, people stopped paying the payments, okay, that resulting in overdues, and that significantly affected our business in the overall banking and leasing sector. And see, it's just because of the fact that when people don't have the power, the real economic power to pay off, you cannot give that much capacity to those individuals to borrow on and on and on. So I think the major reason for this wasn't that कि जी economic problem था, it's the credit evaluation that they did. I personally think the credit evaluation at that time wasn't good. The requirements weren't strict and stern enough to control the entire situation. That was the major reason that resulted in more defaults and all. अच्छा, आपके ख्याल में जो इन्फ्लेशन क्रीप अप करना शुरू हुआ था, फॉर इंस्टेंस वी नो दैट 2004 तक
इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बड़ा कंफर्टेबल 4% लेवल पे था, एंड दैट गेव ए बूस्ट टू कंज्यूमर लेंडिंग, है ना। ये बात आप मानेंगे कि जब 4% पे इन्फ्लेशन था, डिपॉजिट रेट 2% हो गया था, तो बैंक्स, लीजिंग कंपनीज दे फेल्ट क्वाइट इजी टू 8% पे उन्होंने लेंडिंग शुरू कर दी। कार को छोड़ भी दें, दूसरी चीज़ें लोग टीवी खरीदने लगे, दूसरी चीज़ें हाउस होल्ड चीज़ें खरीदने लगे लीजिंग पे, बिकॉज 8% वॉज नॉट ए सच ए बर्डन। लेकिन 4 के बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक जो हमारी डिसिप्लिन थी वो टूटती चली गई। उससे पहले इट वाज मोर लाइक ए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट विद ए स्मॉल बजट, कैबिनेट एंड एवरीथिंग। उसके बाद क्रीप करना शुरू हुआ 4 से 5, 6, 8, 9, 10 एंड फाइनली बाई September 2008 we touched 30% or so। तो जाहिर है फिलिप्स कर्व के को अगर हम माने तो जब इन्फ्लेशन होगा तो जाहिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद से न सिर्फ आपकी इंडस्ट्री बल्कि बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। आपके मार्जिन पे कोई उसका फ़र्क नहीं। आपको अगर 4% पे फंड बोरो करेंगे तो 8% पे आप लेंड कर देंगे, 4% इज़ कंफर्टेबल मार्जिन फॉर यू। अगर आप बोरो ही करेंगे 16% पे तो हाउ कैन यू लेंड लेस देन 20? लेकिन फॉर द पीपल to pay 20% or 22% is very difficult compared to 8%. I know. So that was a major cause of crunch in your business, and generally overall economy पे भी उसका असर आया। So what I would like to say is that कि see, State Bank had a very contractionary policy। State Bank की जो policies थी वो बड़ी stern and strict नहीं थी at that time। अगर आप पीछे जाके देखें 2006, 5, 6, 7 में, तो उसके अंदर getting credit was very easy। आपको पैसा लेना बड़ा आसान हो गया था, पैसा काफ़ी सस्ता हो गया था। बट नाउ अगर अभी देखें ना तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी कॉन्ट्रैक्शनरी हैं, सही है। दे हैव स्टर्न चेक्स ऑन द पेमेंट। इफ यू सी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट काइबो इज 12.39%, 12.4% at the moment। The same thing that you said, if a bank or a leasing company or any financial institution keep a spread of 4 to 5%, then eventually it went to 18%. So yeah, it generally happens that leasing is comparatively a little more costlier than, because we borrow from banks. That is why, but it has its own pros and cons, its own strengths and advantages on the other end, because the requirements are comparatively low than the other companies. So I'll say कि स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से, काइबोर रेट बढ़ने की वजह से फाइनेंसिंग इज एक्सपेंसिव फॉर पीपल इन पाकिस्तान टुडे। पैसा लेना इतना आसान नहीं है। फिर जो आपको धचका लगा था इन द प्रीवियस 2-3 years, दैट मेड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप काफ़ी चीज़ें सीखे उससे। आप ये सीखे कि एवरी अदर इंडिविजुअल डू नॉट डिजर्व्स टू हैव क्रेडिट। आप हर किसी को पैसा नहीं दे सकते। जैसे उस जमाने में लोग क्रेडिट कार्ड लेके पीछे पीछे भाग रहे थे लोगों के, एंड दैट बिकम ए ह्यूज ट्रैप फॉर देम। That was wrong according to you. And one thing I would also like to add out here, see, in most of the financial institutions, अगर आप देखें तो sales and recovery का department is separate from, sales का department is separate and the recovery department is separate from each other. I think it should be a responsibility of one single person to sell and recover the same amount. अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं सेल्स और रिकवरी के, उसमें ये होता है कि सेल तो मैं जाके कर रहा हूँ, आपको आपके बोनस मिल गए, कमीशन मिल गए, आप खुश हैं, आप खुश हैं, आपने सेल कर दिया, तो क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी, यू जंप टू अनदर बैंक, यू स्विच टू अनदर बैंक। जो रिकवरी वाला है, ही इज आल्सो वेरी हैप्पी विद द इफ द रिकवरी हैज नॉट बीन डन, बिकॉज़ उसको भी कमीशन मिलता है उसके ऊपर। इफ रिकवरी हैपेंस और whether not happens, he makes money. But if you have employee retention policy, if you have loyal employees for 10, 15, 18 years in your organization, then that is the thing that makes you strong, because they are the ones who are responsible for recovery. They are the ones who sell also. बेच भी वही रहे हैं, रिकवर भी पैसा वही करें, तो उस सूरत में आपका पैसा जाता नहीं है। एम्प्लॉय फील्स लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय फील्स more indebted when something is not getting recovered। पैसा नहीं आ रहा है तो वो अपनी पूरी तकलीफ उठाता है, मतलब उसको तकलीफ महसूस होती है। अच्छा, थोड़ा सा हम अब इससे हटते हैं और लेट्स अगेन गो टुवर्ड्स द मेन टॉपिक कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ कार इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन। हमारी जो फोकस है कि हाउ मच व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ नॉट व्हाट वी आर बॉदर्ड अबाउट, व्हाट कैन हैपन। एक बड़ी अच्छी खबर आई है, आपके सामने वो न्यूज़ पड़ी हुई है कि हीरो पार्क हैज़ फाइनली गॉट एन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट देयर
buses manufactured in Pakistan to Dubai and other African countries. Or another important thing is that Hino Park has announced that Hino Park has been chosen by the main Hino company in Japan कि पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करके पूरे मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका को एज ए हब वो देंगे. ठीक है, हमें ये पता है कि हीरो की जो टोटल प्रोडक्शन 5,000-6,000 की है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये जो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आर वेरी लिमिटेड. मगर एक अगर आप क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक बहुत अच्छी खबर है ये. How do you comment on this? Sir, I would like to say that if you do an analysis of the market, there are somewhere around 2,000 manufacturers of original equipment manufacturers in Pakistan. जिसमें से 400 falls in the first tier, जो original equipment manufacturers there who are manufacturing for Toyota, Suzuki, Hino and other companies, and there are 1,600 that fall in the second tier that makes small parts. So there are around 2,000 original equipment manufacturers. That means there is some room in the market. That is why so much organizations, small and medium sized organizations do exist in the economy. So ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को पीछे से सपोर्ट नहीं है, बैक एंड सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान से. ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई स्किल लेबर का मसला है. सही है, वी डू नॉट हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्किल लेबर कि कोई जी इंस्टीट्यूशन खुल गया हो गवर्नमेंट बेस्ड या प्राइवेट बेस्ड जो डिग्रीज दे रहा हो इस हवाले से इन दैट रिस्पेक्ट टू द लोअर टेयर. जो छोटे एम्प्लॉइज ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको देने के लिए कोई ऐसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. लेकिन इनफॉर्मल लेवल पे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन. बहुत काम हो रहा है. 2,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं. इवन टोयोटा जैसी कंपनी 70% अगर आप छोटी गाड़ियों में देखें ना, जो कोरे है, मेरान है, छोटी गाड़ियों में अगर देखें तो 70% ऑफ द पार्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर इन पाकिस्तान फॉर स्मॉल कार्स ओनली. फॉर लार्जर कार्स अराउंड 40% ऑफ देयर इक्विपमेंट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद इन पाकिस्तान and then assembled here. So people of Pakistan do have the capacity to extend it. आगे लेके जाएं, 70-80% पे भी जा सकते हैं. फिर ये है कि हमारे यहाँ जो लोकल असेंबली प्लांट्स काम कर रहे हैं, असेंबलिंग यूनिट्स हैं, उसमें कौन काम कर रहा है? People only are working. How many people are working for auto industry? Somewhere around 150,000 people are working in the entire auto industry of Pakistan. 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. अगर जैसे कि अभी हीनो यहाँ 4-5 हज़ार बसेस बना के भेजता है, कल अगर इसको वाकई हब बना दिया जाए और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की पूरी मार्केट मिल जाए तो प्रॉब्ली देयर प्रोडक्शन कैन गो फ्रॉम 5 to say 20,000 or 50,000, 30,000. दैट विल एड अप लॉट ऑफ जॉब्स. ऑब्वियसली समवेयर अराउंड. अगर इसी तरह की चीज़ें, डू यू इन्वेस्टेज इन यू आर यंग मैन, मे बी यू हैव ए ड्रीम टू सी कि वन डे Toyota announces the same thing like Hino. Toyota of course is a much bigger number, something like that. Toyota Corolla जो यहाँ बन रही है उसमें क्या खराबी है? What is wrong with that? Okay. कि क्यों नहीं Toyota कल अनाउंस कर दे कि we have chosen Pakistan as the hub, Karachi especially because we're close to this market. तो अभी Toyota कितनी बनती है आपके ख्याल में? सर Toyota की जो कैपेसिटी है somewhere around 50,000 in Pakistan. 50,000. Yes. सपोज अगर ये हब बन जाता है तो इट विल गो 4-5 टाइम, इट कैन बी इवन मच मोर बिकॉज टोयोटा इज़ अ वेरी, कोरोला वगैरह बहुत पॉपुलर ब्रांड है. तो उससे एकदम से जो है ना बहुत बड़ी बूस्ट आ सकती है. और जापान में तो आपको पता है लेबर इज़ समथिंग लाइक, मैंने जो कैलकुलेशन की थी यूएसए में एवरेज कॉस्ट जापानीज़ एंड अमेरिकन को अगर आप एवरेज कर लें, अमेरिकन तो 73 GM वगैरह 73 दे रहे हैं, जो वहाँ टोयोटा वाला मैन्युफैक्चरर है वो 40-45 देते. तो अगर आप एवरेज 55-60 का भी कह दें तो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट. इसी तरह जापान इज़ ए एजिंग सोसाइटी विथ शॉर्टेज ऑफ पीपल. वहाँ का भी लेबर कॉस्ट आई डोंट थिंक कि $40-50 से कम होगा. यूरोप अगेन सेम. और अभी यूरोप में मेरे ख्याल 15 मिलियन गाड़ियाँ बन रही हैं, जापान में 12 मिलियन बन रही हैं, यूएस में. ये सब आस्ते आस्ते चीप लेबर सेंटर्स लाइक पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है. चाइना में ऑलरेडी हो गई हैं. चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स एंड इवन कंज्यूमर ऑफ कार्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स. आपको ऐसा लगता है कि कभी गिवन ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव कि किसी दिन ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान विल बिकम हब फॉर these major car producers? Sir, I don't feel any doubt about this thing. अच्छा. Until and unless we don't अगर हम रिटेन नहीं करेंगे ना अपने लोगों को. सी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन इज गोइंग ऑन दीज डेज. हमारे लोग बाहर जा रहे हैं बहुत स्विफ्टली. मोर इम्पोर्टेंटली ये मैकेनिकल सेक्टर से जो लोग
ताल्लुक़ रखते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करें, हमारे इंजीनियर्स, अगर आप देखें तो दुनिया भर से इनकी इतनी रिक्वायरमेंट है, दे आर गोइंग टू जर्मनी. आई नो पर्सनली इन माई एरिया आउट ऑफ एवरी 10 हाउस ईच इंडिविजुअल आउट ऑफ 10 8-10 घरों में से 8 लोग बाहर हैं. Every other individual is going. We have a lot of engineers from coming out of NAD and other business, other engineering schools in Pakistan. So ये जो talent that is going from here now, if we try to retain this talent and if we establish the volatile conditions are not economic volatility and the political volatile situations aren't allowing the market को इतना room ही नहीं मिलता कि जी वो grow कर सके, कोई foreign investment आए यहाँ पे. For example, Bosicor is these days putting up a plant in Nooriabad. तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर टोयोटा करे या हीनो अगर कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकअप चाहिए होता है. गवर्नमेंट शुड गिव अ लिटिल बिट ऑफ सब्सिडी, अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस इन पाकिस्तान. इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू हैपन. सी क्योंकि देखिए ना, बेसिक चीज जो होती है ना, आप ये जो बड़े मैक्रो लेवल की जो फैक्टर्स हैं विच हैपन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होती है. ये किसी ज़माने में कंडीशंस कुछ और रही होंगी, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वेस्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई, यूरोप में पॉपुलेशन एज कर गई, जापान में पॉपुलेशन एज कर गई. ये एक दिन में नहीं हुआ है, बड़ा टाइम लगा. लेकिन अभी गिवन सिचुएशन इज़ कि कोई भी लेबर इंटेंसिव काम इन इलाकों में तो कर ही नहीं सकते. यू कैन नेवर थिंक ऑफ. तो इट somehow or the other it has to move to places where there is surplus pool of people. यहाँ 10 करोड़ यंग लोग हैं, बूढ़ों को तो छोड़ दें आप. आउट ऑफ 17 करोड़ 10 करोड़ तो यंग लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो कि रिलेटिवली गुड लुकिंग, रिलेटिवली अंग्रेज़ी अच्छा जानने वाले, जैसे चाइनीज़ को अंग्रेज़ी नहीं आती, जापानी को नहीं आती. तो ऐसे लेबर फोर्स तो आपको कहीं भी इतना सरप्लस दुनिया में नहीं मिलता. अफ्रीका आप चले जाएँ, अफ्रीका इज़ 1 बिलियन पॉपुलेशन टोटल, लेकिन पीपल आर नॉट दैट हार्ड वर्किंग, they are not very eager to work. So where do you go? China में already is a choice place we are going. हमारे यहाँ तालीम इतनी ज़्यादा नहीं, मगर people are very strong and hard working. We are the one who are building all the Middle East and all. Economically speaking, there is no reason why, as you also endorsed, कि this industry should not move towards us. It has to move. Time has come, and only if we can remove some of these bad images and things like that. पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेररिज्म के इश्यूज हैं, मगर इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है. आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लेबर, स्किल्ड लेबर भी है जो कि बाहर जा रही है. Countries of the Far East Asia like Japan and Korea and even China, these countries have a lot of confidence in people of Pakistan. That's why they had been operating since last 25 to 30 years in Pakistan. The only reason behind this is that they have a confidence in Pakistani people. They know the people of Pakistan can do. That is why they are coming out here, establishing their units. Toyota, we can take example. अगर आप Toyota और Daihatsu को देखें, the sales grew in, अगर 2008 में they suffered, तो 2009 में उनकी जो overall sales हैं, they grew by 53%. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा नीचे ही रहेगा या रहा है. It's a fluctuating market. यहाँ पे बूम भी देखे हैं इन कंपनीज ने, तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आया तो उसका रिफ्लेक्शन आ गया. Prices increased with 70%. That wasn't the problem of Pakistan. That was the problem of the entire globe. Yes, we have to take a break here. Sure. नाज़रीन, हम अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं.